Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Afternoon, ma'am. Good afternoon. Good morning, ma'am. Afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, so now today we will start with the fourth unit of your syllabus, which is about the clearance test of the analysis of the renal function. Okay, am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so we will be starting up with the fifth unit, and this fifth unit is related to your syllabus in the earlier semester also, where we have studied about the urea clearance test and the creatinine clearance test. Now, because it is talking about the renal function, whenever we talk about the renal means which is associated with the kidney and the urea. Okay. Yes, Renal की ma'am. जब भी बात होती है तो that means it has some of the other associations with your kidney functions. So if we talk about the clearance test in the in the urine, then they if we talk about the clearance tests, these clearance tests are on the basis of the functions which are performed by the kidney in the body. Okay. Yes, डायरेक्टली ma'am. वी टॉक अबाउट रीनल फंक्शन. सबसे पहले मतलब रीनल फंक्शन बेसिकली क्या होता है, बॉडी के अंदर देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि रीनल और हेपेटिक इश्यूज के साथ रिलेटेड होते हैं. किसी भी नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जो नॉर्मल किडनी है, it can do the work of two, and if all the organs are functioning properly, then
even one kidney is sufficient on the body, whereas अगर सर्टन एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से किडनी का फंक्शन इंटरफेयर होता है, अगर किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है, स्पेशली अगर कोई सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस होती है, देन देयर आर द प्रॉब्लम्स इन द किडनी, और उसके लिए द रीनल फंक्शन टेस्ट्स आर रिक्वायर्ड. Now, because your syllabus says clearance test of the renal function, although there are number of tests, but we only have to study about the clearance tests. जो बॉडी में किडनी के मेन फंक्शन होते हैं, द फर्स्ट मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू गेट रिड ऑफ टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म. कोई भी मेटाबॉलिज्म होते हैं, उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में होते हैं, दे आर एक्सक्रीटेड आउट ड्यू टू द फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय द kidney. If the kidney is not performing in the body, then there will not be proper outing of the urine from the body. So first function, main function is the producing the waste to get rid of the waste products from which are produced out of the metabolism, and it also helps to maintain the salt and the water balance in the body. Along with the salt and the water balance, kidney is responsible to maintain the acid base balance also. ठीक है, एसिड बेस बैलेंस किससे एसोसिएटेड होता है? अगर मैं एसिड बेस की बात कर रही हूं तो क्या टर्म दिमाग में आती है? पीएच वैल्यू. ठीक है, पीएच वैल्यू इज एसोसिएटेड विद द एसिड एंड द बेस बैलेंस. सो नाउ जो बॉडी या किडनी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, उनको क्लासिफाई किया जाता है फर्दर इनटू 4 मेन टाइप्स. एक होते हैं टेस्ट विच आर बेस्ड अपॉन द ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन. एक होते हैं टेस्ट विच आर बेस्ड ऑन द ट्यूबुलर फंक्शंस. एक होते हैं टेस्ट विच आर यूज्ड टू मेजर द आरपीएफ. आरपीएफ मींस रीनल प्लाज्मा फ्लो. जितने भी आपके क्लियरेंस टेस्ट होते हैं, these tests are on the basis of the glomerular filtration या फिर GFR, जिसको बोला जाता है glomerular filtration rate. So because of your syllabus, we are only concerned with the tests which are based on the glomerular filtration rate, and in this semester we will not study the tests which are due to tubular function or due to the RPF, which is renal plasma flow. ठीक है बच्चे, समझ आ गया कि फंक्शंस इसके बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास पढ़ रहे हैं, टेस्ट्स विच आर बेस्ड अपॉन द ग्लोमेरुलर फंक्शन. जो हमने ऊपर मेन फंक्शंस की मैंने आपको मेन फंक्शन बताए हैं, वो एक जनरल फंक्शंस हैं कि सॉल्ट वाटर के बैलेंस को बनाता है, एसिड बेस के बैलेंस को मेंटेन करता है, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी मेटाबॉलिज्म है उनको एक्सक्रीट आउट करता है. ठीक है, नाउ इफ वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट द ग्लोमेरुलर फंक्शन, तो जो ग्लोमेरुलाई होते हैं बॉडी के अंदर, वो एक फिल्टर की तरह एक्ट करते हैं. ठीक है, and when the fluid passes from the blood into the glomerular capillaries, जब बॉडी के अंदर से जो फ्लूइड है वो जब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से एक्ट करता है, पास करता है into the Bowman's capsule, it is of the same composition as that of the protein free plasma. जब तक बॉडी में से फ्लूइड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से पास करता है, तो वो प्रोटीन फ्री प्लाज्मा की तरह ही होती है अभी उसकी कॉम्पोजिशन. इसके बाद क्या होता है, फिल्ट्रेशन प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जहां से जो मैंने आपको ऊपर बताया कि ग्लोमेरुलर्स जो हैं वो फिल्टर्स की तरह एक्ट करते हैं. इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है जो कि फोर्स करता है इस फ्लूइड को कि वो इन फिल्टर्स के थ्रू पास करे. एंड इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज वो मेंटेन होता है, और ऑपोजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स का या रीनल इंटेस्टाइनल प्रेशर का, वो मेंटेन होता है. ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन, दिस इज द ग्लोमेरुलर फंक्शन की पर्टिकुलरली ग्लोमेरुलर के अंदर फिल्टर्स लगे हुए हैं
जिसकी वजह से पास होके उसका ब्लड का प्रेशर मेंटेन होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का, और ऑपोजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होता है। जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है ग्लोमेरुलर के अंदर वो डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर के ऊपर, प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन के ऊपर, and it also depends upon the state of the blood vessels in the patient's body। और जो वॉल्यूम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की कि कितना फिल्टर में से फिल्ट्रेट होके आएगा, वो डिपेंड करती है बहुत सारे ग्लोमेरुलर फंक्शनिंग के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर कि कितनी वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो पास हो रही है ग्लोमेरुलाई से पर मिनट, एंड द इफेक्टिव प्रेशर, प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कितना फिल्टर जो है, कितना फ्लूइड जो है वो फिल्टरेट होके बाहर आएगा या फिर एक्सक्रीट होगा। ठीक है जी। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर हम बात करें, अबाउट 700 ml जो होता है ऑफ प्लाज्मा का, which contains 1300 ml of the blood and approximately 25% of the entire cardiac output। तो अगर हम ओवरऑल बात करें या जनरल एक बात करें तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 700 ml होता है प्लाज्मा का, which flow through the kidneys per minute, और 120 ml जो फ्लूइड होता है इट इज फिल्टर्ड इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। जिन कंडीशंस में ये रेट वेरी करता है, दैट क्लियरली डिनोट्स और डिपिक्ट्स द बैड फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। ठीक है जी। ये ग्लोमेरुलर फंक्शन क्या होता है ये पता चला? ग्लोमेरुलर फंक्शन पता चला किडनीज के अंदर? यस मैम। बॉडी के अंदर जिस फ्लूइड ने यूरिन बन के बाहर पास आउट होना है, वो उसकी कॉम्पोजिशन जब वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर एंटर करता है तो कॉम्पोजिशन कुछ और होती है। उसके बाद बॉडी में किडनी के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्टर्स लगे हुए हैं, फ्लूइड जो है इन फिल्टर्स के थ्रू पास करता है एंड इट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। ये जो फंक्शन है ये बॉडी के ब्लड प्रेशर के ऊपर, ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, और इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि स्टेट ऑफ द ब्लड वेसल्स, जिनके ऊपर कितना फ्लूइड जो है फिल्टर होके बाहर निकलेगा वो डिपेंड करता है। इज इट क्लियर टिल हियर? यस मैम। यस मैम। बस दो लोगों को क्लियर है? Anybody who won't be answering in the class will be removed from the lecture, because you are not here just for the sake of entering into the class. If you could not answer in the class, if you have to keep your mics on mute, then there is no way of sitting in the class. Everybody switch on your videos right now. Switch on your videos, all of you. दीपक एंड मनदीप वीडियो ऑन हो रही है या आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाए? दीपक कुमार, आर यू देयर इन द क्लास? मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही? अपनी वीडियो ऑन कर लो, कोई बात नहीं, मत आने दो वॉइस को क्लियर। स्विच ऑन योर वीडियो। And now put your mics on mute. Deepika, switch on your video. So, जो हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पढ़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्लोमेरुलर फंक्शन, जो किडनी के लिए फंक्शन है ग्लोमेरुलर और ट्यूबुलर फंक्शन, ग्लोमेरुलर फंक्शन को फर्दर डिवाइड किया जाता है 4 तरीके के क्लियरेंस टेस्ट के ऊपर।
and these 4 clearance tests are the part of your syllabus. और जो दूसरे फंक्शन होते हैं वो होता है किडनी का ट्यूबुलर फंक्शन विच इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. ठीक है जी. जो ट्यूबुलर फंक्शन होता है उसके बेसिस पे होते हैं कंसंट्रेशन एंड द डाइल्यूशन टेस्ट एंड द एक्सक्रीशन टेस्ट. नाउ हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेस्ट के अंदर वी हैव टू स्टडी अबाउट basically 3 main clearance tests. The first is the urea clearance test, second is the creatinine clearance, or you can say endogenous creatinine clearance test, and we have to study about the insulin clearance test. ठीक है जी. Yes, ma'am. पहले ये सुनिए टर्म्स क्लियरेंस टेस्ट वाली टर्म सुनिए आपने पहले कभी? No, ma'am. पिछले सेमेस्टर में था क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट. Yes, ma'am. ठीक है. और इंसुलिन वाला? कौन सा था? क्रेटिनिन था सिर्फ कि उसके अलावा कोई और भी था? मैम क्रिएटिनिन और यूरिया था. यूरिया था. वेरी गुड. चलिए अगर हम बात करें, अब हमने बोला है कि ये वाला क्लियरेंस टेस्ट होता है, ये वाला होता है. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लियरेंस टेस्ट क्या होता है. ठीक है. सो क्लियरेंस टेस्ट का मतलब होता है इट इज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द क्वांटिटेटिव रेट ऑफ एक्सक्रीशन किसी भी गिवन सब्सटेंस का बाय द किडनी. अगर आप इसको पर्टिकुलर साइंटिफिक टर्म के अंदर डिफाइन करेंगे, सो इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड और प्लाज्मा which contains the amount of substance which is excreted in the urine in 1 minute by the kidney. या फिर आप इसको बोल सकते हो the clearance of a substance may be defined as the volume of blood or the plasma which is cleared of the amount of the substance which is found in 1 minute excretion of the urine. सीधा सीधा मतलब है ब्लड या प्लाज्मा के अंदर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का एक्सक्रीट आउट होना किडनी की हेल्प से इन द यूरिन इन 1 मिनट, उसको बोला जाता है क्लियरेंस टेस्ट. ठीक है. इफ वी टॉक अबाउट द यूरिया क्लियरेंस टेस्ट, अगर हम यूरिया क्लियरेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यूरिया क्लियरेंस टेस्ट क्या होता है? यूरिया क्लियरेंस टेस्ट, पहले यूरिया क्या होता है? यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट होता है आपके प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का. ठीक है. आफ्टर बीइंग फिल्टर्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुलाई फिल्ट्रेट्स, जो यूरिया होता है वो पार्शियली रीएब्सॉर्ब हो जाता है बाय द रीनल टिब्यूल्स. इस वजह से यूरिया की जो क्लियरेंस है वो लेस होती है हमेशा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के रेट से, क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से आने के बाद इट गेट्स रीएब्सॉर्ब्ड बाय द रीनल टिब्यूल्स, एंड यही एक वजह है दैट द यूरिया क्लियरेंस रेट इज ऑलवेज लेस देन द GFR, जो कि होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. जो आपका ये होता है यूरिया क्लियरेंस होता है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द डाइट. यूरिया की प्रोडक्शन जितनी ज्यादा होगी उसकी रीएब्सॉर्प्शन उतनी ही ज्यादा होगी, और बॉडी के अंदर यूरिया की प्रोडक्शन ज्यादा तब होगी जब जो पेशेंट है या कोई भी ह्यूमन बीइंग है, जब उसकी डाइट में प्रोटीन रिच डाइट इंक्लूडेड होगी. इसी वजह से यूरिया क्लियरेंस जो होता है इट इज नॉट एज सेंसिटिव एज द क्रेटिनिन क्लियरेंस. ठीक है. ऑल्दो इट इज अ टेस्ट फॉर एक्सेसिंग द रीनल फंक्शन, बट the results of the creatinine clearance, they are highly sensitive as compared to the urea clearance test. Now if we talk further about this urea clearance, तो यूरिया क्लियरेंस को डिफाइन अगर किया जाता है, then this is defined as the volume of the plasma that would be completely cleared of the urea per minute. और इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है इट इज U into V divided by P.
U आपका होता है यूरिया कंसंट्रेशन इन यूरिन mg पर ml के अंदर, V होता है यूरिया विच इज एक्सक्रीटेड पर मिनट, ml में होएगा ये भी, एंड डिवाइडेड बाय P, P इज द यूरिया कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, जो कि होएगा आपका mg डिवाइडेड बाय ml के अंदर. So the formula, scientific formula for this thing, for the urea clearance is the U into V divided by P. जो कैलकुलेशन होती है, अगर उसको this calculation is applicable if the output of the urine is more than 2 ml per minute, and if the urine quantity is less than 2 ml, then this formula cannot be applied. Okay, so this 2 ml per minute, it is referred to as मैक्सिमम यूरिया क्लियरेंस. और मैक्सिमम यूरिया क्लियरेंस अगर हम इस चीज को बोल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है. द नॉर्मल वैल्यू इज 75 ml पर मिनट ऑफ द यूरिया क्लियरेंस. ओके, नाउ देयर इज अ टर्म, अभी ये हमने जो पढ़ा, दिस इज मैक्सिमम यूरिया क्लियरेंस, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा. एक होती है मैक्सिमम यूरिया क्लियरेंस, एक होती है स्टैंडर्ड यूरिया क्लियरेंस. मैक्सिमम यूरिया क्लियरेंस होगी व्हेन द आउटपुट ऑफ द यूरिन इज मोर देन 2 ml पर मिनट. अगर हम बात करें स्टैंडर्ड यूरिया क्लियरेंस की, तो स्टैंडर्ड यूरिया क्लियरेंस क्या होती है, वेयर द यूरिया क्लियरेंस drastically changes when the volume of the urine is less than 2 ml per minute. अगर 2 ml per minute से ज़्यादा है, then that is the CM. CM means maximum urea clearance. If the volume is less than 2 ml per minute, this is the standard urea clearance. मैक्सिमम यूरिया क्लियरेंस की नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको बताई है 75 ml per minute, whereas the value for the standard urea clearance is 54 ml per minute. 54. और इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, इट इज U मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ V. उसमें सिंपल U इंटू V था फॉर्मूला में, इसमें है U multiplied by under root of V, whole of this divided by P, where P was the urea concentration in plasma, V is the urine which is excreted per minute in ml, and U is the urea concentration in the urine. This is also taken in mg per ml. Clear है दोनों का फॉर्मूला? Yes, ma'am. Now, what is the like diagnostic importance or what is the clinical importance of this? If the urea clearance की value is below 75% of the normal, then this is a serious indicator of the renal damage in the body. किसी की किडनी फंक्शनिंग को अगर मेजर करना होता है, अगर यूरिया क्लियरेंस की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू की 75% से कम आती है, that indicates the serious damage of the renal functions. And जो blood urea level होता है, it is found to increase only when the clearance level falls below 50% of the normal. अगर सिंपल ब्लड में यूरिया का लेवल देखा जाए, अगर वो मोर वैल्यू ज़्यादा आ रही है, वो वैल्यू तभी ज़्यादा आएगी अगर क्लियरेंस का मतलब है कि वो साफ हो जाना चाहिए था, क्लियर हो जाना चाहिए था. लेकिन अगर क्लियर नहीं हो रहा है, देन दैट मीन्स उस चीज की कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड के अंदर रिफ्लेक्ट होती रहेगी और ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा. ठीक है जी, क्लियर टिल है? Yes, Yes, ma'am. This was ma'am. about the urea clearance test. Urea clearance test is, sorry, creatinine clearance test जो है, that is far more better than the urea clearance test. But ऐसा नहीं है कि this is not used in the laboratories. In certain laboratories, this is still used to measure the function of the renal or the kidneys. Now, if we talk about the यूरिया जो है ये एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का. इफ आई टॉक अबाउट द क्रेटिनिन, क्रेटिनिन इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द क्रेटाइन फॉस्फेट, जो कि प्रेजेंट होता है इन द मसल्स.
क्रेटाइन का प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है क्रेटिनिन। अब जो एक्सक्रीशन होती है क्रेटिनिन की वो कांस्टेंट होती है एंड इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द बॉडी मेटाबॉलिज्म या डाइटरी फैक्टर्स, जैसे यूरिया डिपेंड होता है। अगर प्रोटीन डाइट में ज्यादा प्रोटीन है दैट विल इफेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिया। लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेटिनिन तो इसके ऊपर डाइट का या दूसरे जो फैक्टर्स हैं लाइक मेटाबॉलिज्म, बॉडी के मेटाबॉलिज्म का इन्फ्लुएंस नहीं होता है और इसका जो एक्सक्रीशन रेट होता है इट इज कांस्टेंट। जो क्रेटिनिन होता है, क्रेटिनिन भी फिल्टर्ड होता है बाय द ग्लोमेरुलाइज, इसीलिए इनको हमने इंक्लूड किया है अंडर द ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्राई होता है वो क्रेटिनिन को भी फिल्टर आउट करता है एंड द वैल्यू ऑफ द क्रेटिनिन क्लियरेंस इज वेरी मच सिमिलर टू द GFR, जो कि होता है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। हमने बात जब यूरिया की करी थी तो हमने बोला था यूरिया क्लियरेंस क्या होता है GFR से। यूरिया क्लियरेंस की वैल्यू GFR से कैसे होती है, कम होती है कि ज्यादा होती है? हमने अभी यूरिया क्लियरेंस में पढ़ा है कि यूरिया क्लियरेंस विल ऑलवेज बी लेस देन GFR। पे अटेंशन इन द क्लास। यूरिया क्लियरेंस की वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन GFR, बट जो वैल्यू होएगी यूरिन की क्रेटिनिन क्लियरेंस की दैट विल ऑलमोस्ट बी सिमिलर टू द GFR। ओके, इसीलिए यही कारण है जो हम बार बार बोल रहे हैं कि क्रेटिनिन क्लियरेंस है दैट इज द बेटर इंडिकेटर एंड अ सेंसिटिव टेस्ट टू मेजर एज कंपेयर टू द यूरिया क्लियरेंस टू एक्सेस द रीनल ग्लोमेरुलर फंक्शन इन द बॉडी। अगर आपको टर्म को क्रेटिनिन क्लियरेंस को डिफाइन करना है, क्रेटिनिन क्लियरेंस जो होती है इट कैन बी डिफाइंड as the volume of plasma that would be completely cleared of creatinine per minute by the kidneys. Okay, and for measuring the value of creatinine clearance, the urine sample which is taken is always 24-hour urine collection. क्रेटिनिन क्लियरेंस को कैलकुलेट करने के लिए द फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ द मैक्सिमम यूरिया क्लियरेंस विच डिनोट्स सी आपकी है क्रेटिनिन क्लियरेंस इज इक्वल टू U इंटू V बाय P, जहां पर U है यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ क्रेटिनिन, V है यूरिन आउटपुट इन ml पर मिनट जो कि होगा 24-hour यूरिन वॉल्यूम का, and P is the plasma concentration of the creatinine. Creatinine concentration जो होती है यूरिन एंड प्लाज्मा के अंदर it should be expressed in the same unit, चाहे उसको आप mg पर dl के अंदर ले लो, चाहे आप उसको मोल्स पर लीटर के अंदर लो, but it should be same. क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. इसके प्रोसीजर के अंदर अगर थोड़ी सी वेरिएशन आई है इन सम ऑफ द लेबोरेटरीज, वहां पर क्या किया जाता है, इंस्टेड ऑफ 24-hour यूरिन कलेक्शन प्रोसीजर को मॉडिफाई किया गया है टू कलेक्ट द यूरिन फॉर 1 hour आफ्टर गिविंग द वाटर टू द पेशेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन इज रिकॉर्डेड। यहाँ पर क्रेटिन का जो कंटेंट है in the plasma and urine is estimated and the creatinine clearance can be calculated by the same formula जो हमने ऊपर पढ़ा है U into V divided by P. नॉर्मल वैल्यू जो क्रेटिनिन क्लियरेंस की होती है इट इज फ्रॉम 120 to 145 ml per minute. Okay, and these value is slightly lower या इससे slightly थोड़ी सी कम होती है in women. इसका डायग्नोस्टिक या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि इफ देयर इज डिक्रीज इन द क्रेटिनिन क्लियरेंस, नॉर्मल से 75% वैल्यू कम हो जाती है, इट इज अ सेंसिटिव इंडिकेटर
ऑफ द रीनल डैमेज, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू कम हो रही है दैट मीन्स बॉडी के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की वैल्यू भी कम हो रही है. So this test, it is very useful for the early detection of any problem in the kidneys. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. For the notes of this chapter, you can refer to the book MN Chatterjee. Have you guys downloaded it from the internet? If anybody have not found it, please let me know. I will give you the PDF on WhatsApp group, and there are almost notes of almost every unit in this book, so you can directly study from this book and prepare for your midterm, which is very near. सबने डाउनलोड कर ली है कि नहीं करी है? और अगर किसी को नहीं मिली है, प्लीज लेट मी नो. आई विल शेयर द बुक पीडीई बुक विद यू. मेरे को मैम नहीं आप मिली शेयर मैम. कर देना, मैम मिली नहीं थी. ओके, ठीक है. आई विल सेंड इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, थैंक यू मैम. ठीक है. अभी दिस वाज अबाउट द यूरिया एंड द क्रेटिनिन. जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज द इंसुलिन क्लियरेंस टेस्ट. इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन बॉडी के अंदर इट इज अ होमोपॉलीसेक्राइड, जो कि फ्रक्टोज की का एक पॉलीमर होता है, एंड इट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी. इंसुलिन का सबको पता है कि इंसुलिन की मेटाबॉलिसिस बॉडी में नहीं होती है. एंड इंसुलिन की जब बॉडी में कमी हो जाती है, इट इज गिवन बाय दी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन. इसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, एंड इट इज एक्सक्रीटेड एंटायरली थ्रू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. इसकी कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, ये डायरेक्टली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है. ओके, ना ही रीनल टिब्यूल्स इसको एक्सक्रीट करते हैं, ना ही इसको रीअब्सॉर्ब करते हैं लाइक दे डू इन द केस ऑफ द क्रेटिनिन. इसीलिए जो नंबर ऑफ ml होता है प्लाज्मा के अंदर which is cleared of insulin in 1 minute, it is equivalent to the volume of the glomerular filter which is formed in 1 minute of the insulin. This is how you could define the insulin clearance test. इंसुलिन क्लियरेंस टेस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए भी इट विल बी u इंटू वी डिवाइडेड बाय p, जो आपने पहले ही पढ़ा है. u को आप मेजर करोगे mg in mg डिवाइडेड बाय ml, mg ऑफ इंसुलिन एंड ml ऑफ द यूरिन. v की वैल्यू भी आपकी रहेगी ml डिवाइडेड बाय mt, एंड p विल बी अगेन mg डिवाइडेड बाय dl. नॉर्मल अगर हम बात करें इंसुलिन क्लियरेंस की एडल्ट के अंदर, it is 1.73 per 125 ml of the plasma which is cleared of insulin. अगर हम रेंज की बात करें, नॉर्मल रेंज इज 100 to 150 ml in the normal patient. अगर वैल्यू इससे कम या ज्यादा है, it is an indicator of the bad kidney function of the patient. क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम. These three are the main tests for the clearance test. इसके अलावा there is a CR-EDTA clearance. एक CR-EDTA clearance है which is used very less in the laboratories, but still because it is a part of your syllabus, so you should at least know how to define it. CR-EDTA clearance में क्या होता है? सिंप्लीफाइड इंजेक्शन होती है मेथड की फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ CR-EDTA. बॉडी के अंदर एक कंपोनेंट है, उसको मेजर किया जाता है इन द प्लाज्मा क्लियरेंस, और इसको रूटीनली यूज किया जाता है मेनली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिटेक्ट करने के लिए. ऊपर हम रीनल फंक्शन को, किडनी के फंक्शन को, कि वो कितना एक्सक्रीट कर रही है, हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं. CR-EDTA को हम यूज कर रहे हैं फॉर एक्सेसिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ये टेस्ट एडल्ट्स के लिए भी होता है और बच्चों के लिए भी होता है, और ये पर्टिकुलरली कन्वीनियंट होता है बच्चों के लिए बिकॉज इसके अंदर 24 आवर सैंपल नहीं चाहिए होता. So it can even be used in the very young children whose age are below 1 year or so. So these four are the tests for which are included in the under the glomerular filtration tests.
and these are the clearance tests which you have to study for the renal function. ठीक है जी? Yes, ma'am. So these 4 tests you have to study in your 4th unit. This is the completion of the 4th unit. The notes are given in MN Chatterjee and they are also given in one other book. आपको कोलहटकर के अंदर भी क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट और यूरिया क्लियरेंस टेस्ट मिल जाएगा एंड यू ऑल्सो हैव इट इन सत्यनारायण बायोकेमिस्ट्री की बुक है, उसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे. ठीक है, जरूरी नहीं है इंसुलिन और CREDTA का सब जगह मिले, बट इट इज गिवन इन द MN Chatterjee because these all clearance tests are a part of your syllabus, so you have to study all 4 of them. Okay, I'll just forward the book on WhatsApp today so you guys can look through the notes. You can study the topic. If there will be any doubt, then from tomorrow onwards, as you all might have read the message on WhatsApp, from tomorrow onwards till Monday are your Diwali holidays. So wish you all a very happy and safe Diwali. And on Tuesday, try to complete at least 2 of these units which we have covered after the midterm. इसके doubts clear कर लीजिए, पढ़ लो, notes नहीं मिलते हैं, just let me know, so that because these 2 units including the previous units are your part of the new syllabus for the midterm. सभी यूनिट्स ने आना है, लेकिन पहले वाली यूनिट्स आप लोग पढ़ चुके हो एक बार, आपको पता है कहाँ से पढ़नी है. इस यूनिट को पढ़ लेना, ढूंढ लेना. जिसको नहीं मिलती है, let me know on Tuesday because in the following week there will be your next midterm exams. जिन्होंने पिछली बार बहुत अच्छे से विकिपीडिया से चीटिंग करके पेपर दिए थे, वो इस बार ऐसी कोशिश ना करें, क्योंकि इस बार if there is any cheated vocabulary or the lines from the internet, your exams would be directly marked 0 without any explanations. ठीक है जी, आपको ये फेडिना पे भी इंस्ट्रक्शन आ जाएगी क्लियरली. इफ एनी पेपर वुड बी फाउंड चीटेड, कॉपीड फ्रॉम विकिपीडिया और एनी अदर साइट ऑन द इंटरनेट, योर पेपर विल बी मार्क्ड एज 0 and you will be marked absent for that exam. Okay, chaliye, so that is all for today. See you all on Okay, ma'am. Tuesday at the same time. Thank you, ma'am. Okay, welcome. Happy Diwali, ma'am. Thank you, same to you. Yes, ma'am. Ta ta ta.